یہ وہ زیارت ہیں دید موج کی زیارت، جہاں پر لوگ اپنی منتوں کو لے کر آتے ہیں۔ عقیدت مند بڑے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جموں سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں۔ جی اس کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ تو یہ نانی محترم ہے حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی محترمہ ہے۔ اس کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ یہاں پر اس کو دید موج کے نام سے ہم یہاں اس کو ہر دید موجی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس کی جو مزار تھا پہلے اس پہاڑی کے اس طرف تھا۔ کو پھر کسی خواب میں کوئی بزرگ آئے، اس نے کہا لوگوں کو یہاں آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا کرو آپ جا کر کسی گاؤں میں بس جاؤ۔ تو پھر اس نے جو یہ پارچہ ہے زمین کا، یہ درخت لے کر پورا درخت جو لگے ہیں یہاں پر، یہ درخت لے کر وہاں سے آئی ہے۔ یہاں پر مردوں کا آنا تو منع ہی ہے، کیونکہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جاتے بھی ہیں تو یہاں سے آپ کو پھر ایگزٹ لے لینا ہے۔ یہاں پر صرف ہماری خواتین جو ہے وہ یہاں تک جا سکتی ہیں۔ تو شاہ ہمدان امیری کبیر کی نانی ہیں، پھر ادھر سے یہاں آئی، اور جو بھی ہم غریب لوگ تھے یہاں حاضری پاتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم بالکل تندرست ہو جاتے ہیں۔ پر آ کے ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو دین میں منائی ہے، یا جو چیزیں غلط ہے وہ چیزیں یہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ جس ورکا برانڈ آپ کے لایا ہے ورکا کیٹل فیڈ، جو نہ صرف دودھ میں اضافہ کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ دودھ کے معیار کو باقی کے مقابلے میں ٹھیک کرتا ہے۔ کشمیر کے تمام ڈیری فارم مالکین اور پشو پالن سے وابستہ لوگ ورکا کے بااختیار ڈیلر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ویلکم۔ میں آپ کے ساتھ عرفان ملک ہوں۔ دوستوں، میں اس وقت کپوارہ سے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور کاچھاما علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر آج سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کی زیارت آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ ایسا علاقہ ہے جنہوں نے اس زیارت کو سنوارا ہے، زیارت کو سجایا ہے، اور زیارت کی جو سیفٹی ہے اس کے لیے یہاں پر جو مقامی لوگ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر، ہم تو یوں کہیں گے کہ پورے بھارت سے یہاں پر لوگ عقیدت مند آتے ہیں اور اپنی مراد کو لے کر یہاں پر وہ حاضری دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ اس زیارت کا نام زیارت دید موج ہے، یا دودھ موج بھی اس کو کہتے ہیں یہاں پر عام بھاشا میں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے تاکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہ ہے کیا یہاں پہ۔ یہ جو ہماری زیارت تھی باپ دادا کے پہلے سے دودھ ماجی صاحب آئی، تو شاہ ہمدان امیری کبیر کی نانی ہیں، پھر ادھر سے یہاں آئی، اور جو بھی ہم غریب لوگ تھے یہاں حاضری پاتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم بالکل تندرست ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ یہاں آئے، آپ جیسے آدمی یہاں شخصیز والے آئے، باقی جیسے آئے، تو ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو کام وغیرہ ہے، پانی وغیرہ ہے، جو اس کا رکھنے والے ساتھ والے جو ہمسائے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ویلکم ہے ہمارے کو۔ تو اس کو وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانا چاہیے۔ یہ ہماری وہ زیارت ہے جو باپ دادے کی ہے، جموں کشمیر سری نگر بارہمولہ سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم یہاں نماز بھی یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں کے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہماری یہاں مائیں بہنیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے کو بہت اس سے راحت ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی اس میں ہاتھ بٹائیں، ہمارے منسٹر لوگ جو بھی ہیں وہ بھی ہاتھ مٹائیں، جو عوام ہیں وہ بھی ہاتھ مٹائے۔ تو ہم اس کے لیے آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ یہاں آج پہنچے، ہماری بات اپنے آگے کو پہنچایا، اور یہاں درسگاہ بھی ہمارا مولانا اشرف صاحب نے بنایا، تو وہ فری پڑھاتا ہے، بچوں کو فری دیتا ہے، تو وہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ہم اس کا کیا ہے کہ چندہ وغیرہ ادھر ادھر سے کر کے وہ ان کو دیتے ہیں، وہ گھر سے بھی لگاتا ہے بیچارہ۔ تو بہت سارے بچے اور حافظ قرآن بھی بچیاں بہت ساری یہاں ہو گیا۔ تو اس کا ہمارے کو مولانا صاحب کا بھی شکریہ، اور آپ کا بھی، اور دودھ ماجی صاحب کے وسالت سے یہ لوگ یہاں ہم لوگ آتے ہیں جناب۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ یہاں پر حاضری دینے کے لیے زیادہ تر آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر مرد حضرات کو یہاں پر انٹری نہیں ملتی ہے، اندر جانا ان کا منع ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہماری یہ ماں ہے جس نے دین کے لیے بہت زیادہ خدمت کی ہے وہ یہاں پر دفن ہے۔ ان کی زیارت ہے یہ، جو زین العارفین رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی نانی ہے یہ۔ اس کے بارے میں دیکھیے، ہماری عمر تب اتنی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو سنا ہے پرانے لوگوں سے کہ یہ جو زیارت ہے، جی، جو یہاں یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاڑ کے پیڑ ہیں، یہ بیسیکلی اس میں نہیں تھے، یہ بالکل خالی جگہ تھا۔ یہ جس طرح باقی علاقہ پلین ہے اس طرح یہ بھی پلین تھا، لیکن جب یہ اوپر جاتے تھے، اس کی جو مزار تھا پہلے اس پہاڑی کے اس طرف تھا، تو وہاں لوگوں کو جانے میں بہت دقت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، وہاں پہنچ نہیں پاتے تھے سب۔ پھر اس کو ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا کہ ان کو پھر کسی خواب میں کوئی بزرگ آئے، اس نے کہا لوگوں کو یہاں آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا کرو آپ جا کر کسی گاؤں میں بس جاؤ۔
तो फिर इसने जो ये पार्चा है ज़मीन का, ये दरख्त लेकर पूरा दरख्त जो लगे हैं यहाँ पर, ये दरख्त लेकर वहाँ से आई है और आके यहाँ पर बस गई है। इसके बारे में बताइए, इसका कुछ रियल नाम पता है? नाम? जी, इसका नाम हज़रत फ़ातिमा है। तो ये नानी मोहतरमा है हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की नानी मोहतरमा है। इसका नाम हज़रत फ़ातिमा है। यहाँ पर इसको ददमोज के नाम से हम यहाँ इसको हर ददमोजी के नाम से ये मशहूर है। हर जगह कहाँ जाना है, ददमाजी साहब की ज़ियारत पे जाना है और ददमाजी साहब के नाम से ये बहुत मशहूर है। और तरह तरह से लोग यहाँ से, हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर शहर से, श्रीनगर जम्मू अकीदतमंद आते हैं, अपनी हाज़िरियाँ लेते हैं और अल्लाह ताला इनकी वसालत से उनकी हाज़िरी को पूरा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, मुझे बताइए थोड़ा सा, आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, तो ज़ियारत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और ददमोज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो, आपने क्या सुना है? मैंने यही सुना है जी, ददमाजी साहब के नाम से इसको पुकारते हैं। कोई भेड़ लाता है, कोई बकरा लाता है, कोई दान लाता है, कुछ ऐसे जो मन्नत मानी होती है इधर तकसीम करते हैं, तो उनकी हाजत अल्लाह ताला कबूल कर देता है जी। तो कितने साल से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की भी कमी है? हमारे बाप दादा जिंदे थे जी तब से ये आई है। उससे के पहले इधर ऊपर जंगल में रहती थी। तो फिर वो पुराने लोग कहते थे जी, किसी बुजुर्ग ने बोला था इधर गांव में आ गई, तो पहले ऊपर रहती थी जंगल में। आपको मैं बताता चलूँ, तकरीबन 700 साल हो गए और ये ज़ियारत यहाँ पर मुकीम है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके बाद में अंदर जाना मना है क्योंकि यहाँ पर उनका रोज़ा है। थोड़ा सा दिखाइए आप, बिस्मिल्लाह। देखिए, यहाँ पर जो ज़ियारत है ये ददमोज की है और जिसने दीन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ पर मर्दों का आना तो मना ही है क्योंकि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते भी हैं तो यहाँ से आपको फिर एग्ज़िट ले लेना है। यहाँ पर सिर्फ हमारी ख़वातीन जो है वो यहाँ तक जा सकती हैं, अंदर रोज़े तक जा सकती हैं। बाकी यहाँ पर मर्दों के लिए मना है। तो यहाँ पर मर्द यहीं तक आ सकते हैं। हाँ, मर्द यहीं तक आ सकते हैं और इसके बाद अंदर नहीं जा सकते, वहीं से निकल जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम रखा है? हाँ, इंतज़ाम रखा है। उधर से भी गेट रखा है, इधर से भी गेट रखा है। आते जाते हैं, उधर से जाते हैं और इधर से मर्द अंदर से नहीं जाएगा। दूसरा रोज़ा अंदर से है, उसको नहीं जाते हैं। देखिए, इन बुज़ुर्गों ने दीन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, तब ये दीन हमारे पास पहुंचा है। हम इस वक्त अगर मुसलमान हैं तो वो इन्हीं की देन है। हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इनके जो रोज़े मुबारक है या जो ज़ियारत शरीफ है, इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पर आके हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो दीन में मनाही है, या जो चीज़ें गलत है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके के विजुअल्स हमें बाहर से मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर लोग जो हैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं और हाज़िरी दे के वो निकल जाते हैं। मुझे बताइए, जो आपने कहा कि यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं ये फल फ्रूट के लिए यहाँ पर लगाए गए थे? ये फल फ्रूट के लिए पेड़ लगाए हैं, उसको अपने खाने के लिए। वो यहाँ पानी का कुआं है, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए, पानी पीने के लिए। ये इसको कहते हैं फरकिन टॉप। ये फरकिन टॉप में उसको चोटा कहते हैं हमारी अपनी भाषा में। चोटा, ये वहाँ इसकी बैठक थी, चोटी जिसको कहते हैं। जी हाँ, वहाँ सेब का पेड़ है अभी भी, वो सूख गया, अभी भी वहाँ सेब का पेड़ है। उसके बाद ये उठ के यहाँ पार आगे इसको कड़ी बाग कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आगे ये पूरा पेड़ वेड़, ये पौधे वौधे सब अपने साथ में लेके आई। और पानी का कुआं जो है इसने अपने पीने के लिए इस्तेमाल किया है और कुछ शुफा है इसको बीच में। जो वो पानी लेता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो कोई भी बीमारी हो वो दूर हो जाती है। उसके मौजूदा इसको यहाँ पे ख़ास तौर मन्नत मानते हैं बच्चों के लिए, जिससे इसको माँ का दर्जा दिया जाता है। जी, माँ का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद तो मोज, कश्मीरी में अगर मोज जो है ना, माँ को कहते हैं। हाँ, माँ को कहते हैं, दूध मोज, हाँ इसको माँ को कहते हैं। उसके बाद जो भी मन्नत होती है, यहाँ जिसको लड़का नहीं होता है वहाँ पे मन्नत मानता है तो वहाँ हो जाता है। उसके बाद वो अपनी नियाज वो जो भी लाता है, वहाँ आगे लंगर है, इस साइड में किताबें रखी है, बिल्कुल इसका नाम सब कुछ। पहले इसका गेट यहाँ से था क्योंकि यहाँ से इसने मना कर दिया गेट, क्योंकि इसकी लास्ट वाली आखिर सरांद इसका पीछे है, ठीक, इसका रुख पीछे है। वहाँ असली गेट जो 700 साल से है वो पुराना गेट, वहीं से जहाँ से हम घुस गए। इसका बाद में ये गेट बना दिया, फौज ने आर्मी में गेट बना दिया। ये गेट कामयाब नहीं हुआ तो ये गेट उसका फेल हो गया, वो गेट भी गिर गया, तो उसके बाद कामयाब नहीं हुआ। उसको ये जो फट्टे हैं इसके, ये तो 200 साल के पुराने फट्टे हैं ये। जी हाँ, ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए। थोड़ा सा आप यहाँ से जूम करके दिखाइए। ये वो ज़ियारत हैं
ददमोज की ज़ियारत, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। अकीदतमंद बड़े दूर दराज इलाकों से आते हैं, जम्मू से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, हर एक इलाके से यहाँ पर ज़्यादातर जो माएँ बहनें हैं वो यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर हमने बुजुर्गानी दीन को नहीं देखा या उनकी ज़ियारतों को नहीं देखा है। ये एक वाहिद ऐसी ज़ियारत हमने देखी यहाँ पर जिसको माँ का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर एक औरत दफन है जिसने दीन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ये भी बताया जाता है कि ये ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी नानी जी है जिसने यहाँ पर दीन की खिदमत को अंजाम दिया है। यहाँ से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है ताकि यहाँ पर जितने भी बच्चा आ जाए वो यहाँ पर दीन की तालीम को हासिल कर सके। यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी भी है, थोड़ा बहुत चाचा से सुनने की कोशिश करेंगे। चाचा मुझे बताइए अभी कौन कौन से चीज़ यहाँ पर और करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन में क्या कुछ कमी है? अब इसमें अभी तार की कमी है और वाटर सप्लाई की, पानी की कमी है। और यहाँ हमारा दरगाह बना हुआ है, अशरफ साहब मौलाना साहब ने बनाया हुआ है और उसका पैसा खुद वो लगाता है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बिजली का हमारे को तंगी है और इसकी जगह की थोड़ी तंगी है कि हमारा दरगाह छोटा है। ये मतलब लंगर है, लंगर में अभी कमी है हर चीज़ की। और यहाँ जो किताबों की जगह है इसकी कमी है और सेट की जो यहाँ ज़ियारत का कोई काम रह गया है उसकी कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कमी है कि बच्चे बाहर से आते हैं, वो यहाँ बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक की तालीम लेते हैं, उनको भी कमी है। पानी की कमी है, बिजली की कमी है और मतलब जो बुनियादी सहूलियात है उनकी कमी है। कोई भी अफसर अगर हमें यहाँ पर लोकल एरिया से देख रहा है तो यहाँ पर इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, यहाँ पर इस पर और काम करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए और रिलीजियस टूरिज़्म को अगर हम फ़रोग दें, उसको बढ़ावा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार का एक मौका जो है वो मिल सकता है।